Okay, children, we are discussing about the center of mass. In the previous lecture, we defined what is center of mass. We have derived expression for center of mass of two particle system for a system of n number of particles, coordinates of the center of mass, position vector of center of mass. All these things we have discussed. Okay. और क्या क्या इसमें आपने पढ़ा था देखिए इसमें if we talk about the center of mass then RCM or directly I can write it R vector is equal to M1 R1 plus M2 R2 upon M1 plus M2. This is the position vector of center of mass of a two particle system in Cartesian coordinates. And here for n number of particles, we define it, that is 1 upon m, it is total mass, m1 plus m2 the total mass, summation I mi ri, or I can write 1 to n. This is for n number of particles. Then we have defined the coordinates of center of mass, because r vector can be written as xi plus yj plus zk, where x is the x coordinate of center of mass, y coordinate of center of mass, z coordinate of center of mass, it is the position vector of center of mass, where x is given by, I can write xcm or simple x directly, I can write xcm, ycm, zcm. For the sake of convenience, I am writing x instead of xcm. That is equal to 1 upon m, summation I is equal to 1 to n mixi. Similarly, ycm or y coordinate of center of mass, summation I is equal to 1 to n miyi, and zcm, or simply I am writing z is equal to 1 upon m, summation I is equal to 1 to n mizi. Children, all these things we have discussed in the last lecture. पहले लेक्चर में सारी चीजें हम पढ़ के आ चुके हैं, सारी चीजें हम समझ चुके हैं. तो बच्चों, but this formula, this technique can be applied for the system of particles. Suppose there is a system of three particles, there is a triangle, three masses are kept at the three corners or vertices of this triangle. Find its center of mass, then we can apply this formula, right? If you have a system of four particles kept at four corners of a rectangle or a parallelogram or a square, then find its center of mass. We have different points and we can find the center of mass like this. So ये सब टेक्निक इसके लिए काम करते हैं. When we talk about the center of mass of a rigid body, जब हम center of mass किसी rigid body का निकालना चाहते हैं, suppose we want to find the center of mass of this one. ये इसकी डेफिनेट लेंथ है, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना चाहते हैं, कहाँ पे लाई करेगा, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स. इसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं, एटम्स आर कॉम्पैक्ट पैक्ड इन इट एंड देयर इज अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स इन दैट केस. तो बच्चों, ऐसे केस में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अप्लाई दिस फार्मूला. वी कैन नॉट अप्लाई दिस फार्मूला फॉर सच केसेस in which we cannot take average of all the particles by which this marker or this body is made of. So for this we have to just generate another formula. I am going to discuss here, that is center of mass of rigid body. Rigid bodies के लिए center of mass आप कैसे निकालोगे, ये हमें find करना है. How to find the center of mass for rigid bodies? Since rigid body consists of the large number of particles and it is very difficult for us to take the average of all the particles. How many number of particles are there? How we take the mass of each particle, distance of each it's from the axis from the particular point? Then this formula cannot be applied directly. This formula cannot be applied directly. So for this we use the integration method. So for center of mass of rigid body we use integration method. अब देखिए इंटीग्रेशन मेथड में क्या होगा, हम लिख के चलते हैं कि कोऑर्डिनेट को xcm, जिसको आप x कह रहे हैं, दैट इज m समेशन ऑफ x dm. ये लिखे, ये पार्टिकल बनेगा. दिस इज द एवरेज. ये जो आपका इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स हैं, इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं, सेपरेट पार्टिकल्स हैं, उनके लिए तो ये समेशन का फॉर्मूला होता है. और अगर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें कहते हैं, ये जैसे मार्कर है, कोई सॉलिड बॉडी है, उसके लिए मास उसमें है, उसके लिए ये इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला. तो ये भी एक तरह का टोटल बनेगा, सम बनेगा, और डिवाइडेड बाय द टोटल मास. और फिर इसी तरह से हम ycm ले सकते हैं, और y इज इक्वल टू 1 अपॉन m इंटीग्रल y dm, एंड दिस इज zcm
or z is equal to 1 upon m integral z dm, where x is the distance of the mass dm, and such number of particles, we have large number of particles, and take the average means take the integration of that. So this technique we are going to use for the center of mass of a rigid body. This formula changes to this one, this formula changes to this, and this formula changes to this. ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूले किसके लिए थे? जो इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स है, जैसे अभी हमने बताए, ये किसके लिए हैं? किसी सॉलिड बॉडी के हैं, बाय विच द बॉडी इज मेड ऑफ, और वो बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, ये उनके लिए फॉर्मूला बनेगा, और ये आप सेंटर ऑफ मास निकालेंगे. चलिए एक एग्जांपल लेते हैं. सेंटर ऑफ मास ऑफ, एग्जांपल लेते हैं सेंटर, अब इसको हम सीएम लिख सकते हैं शॉर्ट में, सीएम ऑफ अ थिन रॉड, थिन यूनिफॉर्म रॉड. कोई भी थिन रॉड है वो यूनिफॉर्म है. यूनिफॉर्म मींस इन विच द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली. सपोज दिस इज ए रॉड, थिन रॉड, and its length is L. L is total length and M is the mass of this. Mass कितना है इसका? M है. Let M is mass of the rod. L is length of the rod. Okay. What is mass per unit length? Per unit length is equal to M upon L. L length has mass M. Unit length has mass m upon l. Now consider a small element over here, and suppose this width is dx, length of this is dx, and this distance from here it is x from x. ये कोई रोड थी AB, A एंड से लेके x डिस्टेंस पर कोई भी हमने स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया dx, और इस dx का जो मास है वो मान लीजिए कितना मास है? dm हो गया. So the small mass of the element of length dx, that is dm is equal to, बताइए कितना हो जाएगा? यूनिट लेंथ का मास कितना है? ml, और इस स्ट्रिप की लेंथ कितनी है? इस एलिमेंट की लेंथ कितनी है? dx. तो ये हो जाएगा m अपॉन l इंटू dx. बोलो बात समझ आई कि नहीं? तो सबसे पहले हमने क्या किया कि इसमें स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया, और उसका मास कितना है? dm है, और कितने डिस्टेंस पर है? ये x डिस्टेंस पर है. a एंड से कितने डिस्टेंस पर है? x डिस्टेंस पर होगा. हम इसके लिए सेंटर ऑफ मास निकालना चाहते हैं, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए इसके लिए x कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों? नाउ x कोऑर्डिनेट विल बी, अप्लाई दिस फॉर्मूला, 1 upon m, total mass is m. This is x dm, and from where? 0 to l. This end corresponds to length 0, and this end corresponds to length l, and this small element dm of mass dm can be assumed from point A to point B. टोटल कहीं भी आप इसको एज्यूम कर सकते हैं. जैसे देखिए इस मार्कर का एग्जांपल लो, ये जो आपको रेड स्ट्रिप दिख रही है, ये रेड स्ट्रिप क्या मान लिया आपने? dx मान लिया. इसकी विड्थ कितनी है? dx. इसका मास कितना है? dm. पहले इस dm का आप सेंटर मास निकालिए और टोटल का इंटीग्रेट कर दीजिए, एंड दिस स्मॉल स्ट्रिप कैन बी एज्यूम फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड ऑफ द रोड. ओके, यहाँ कितने डिस्टेंस पे एज्यूम किया आपने? x. ओके, इसकी विड्थ कितनी है? dx. इसका मास कितना हो गया? m अपॉन l इंटू dx, और इसको यहाँ 0 से लेके l तक आप एज्यूम कर सकते हैं. तो ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन वाला आप अप्लाई कर देंगे, और देखिए dm की वैल्यू यहाँ से रखिए, 1 अपॉन m, 0 to l, दिस इज m अपॉन l इंटू dx. ये तो वैल्यू आ गई बच्चों dm, एंड x is always here. So when you will solve it, you will get it is 1 upon l, and that is x square by 2, x integration, it is 0 to l, that is 1 by l square by 2, and it is l by 2. And what is y coordinate? Y coordinate will be 0. Y coordinate will be 0 because it is thin rod. There is no distance. This width is negligible as compared to its length. So there is no y coordinate corresponding to it. Only you have one dimensional shape, that is linear in shape. So linear in shape का मतलब होता है जिसकी length ज्यादा होती है as compared to its diameter, as compared to its thickness. So its thickness or diameter is very small as compared to its length. So it's one dimensional body, you can say. It is a linear object. The thin rod is linear object. In that case, y coordinate will become 0, and under that L by 2 means its center of mass will lie at the midpoint. So in case of a solid rod, the center of mass will lie at its midpoint.
पॉइंट, इसके मिड पॉइंट पर सेंटर ऑफ मास लाई करेगा थिन रोड के केस में. सो दिस इज द फॉर्मूला और दिस इज अ वे टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रिजिड बॉडी. नाउ वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मूले. फॉर a system of particles, independent particles, you have this kind of system in which we have three coordinates x, y and z, and we have the position vector of center of mass. For a two particle system we have this formula to find the center of mass, and for a rigid body which consists of a large number of particles, this technique, this formula cannot be applied in that case. Then we have replaced these formulae by the another formula of the integration method. The concept is almost similar, so then you can find center of mass of a body. तो बच्चों इस तरीके से आप सेंटर ऑफ मास फाइंड कर सकते हैं किसी भी बॉडी का. तो अगर आपसे कहा जाए कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा इस रोड का, अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, यूनिफॉर्म रोड मींस व्हेन द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली देन इट विल लाई एट इट्स मिड पॉइंट. इसके मिड पॉइंट पर सेंटर ऑफ मास लाई करेगा. द होल मास ऑफ दिस मार्कर कैन बी एज्यूम्ड एट इट्स सेंटर. ओके, दैट विल बी द सेंटर ऑफ मास. ये सेंटर ऑफ मास हो जाएगा. तो इसी तरीके से हम एक टेबल बनाते हैं, कुछ बॉडीज लेते हैं और उन बॉडीज का सेंटर ऑफ मास हम बताएंगे कहाँ कहाँ लाई करता है. इन फ्यूचर वी आर गोइंग टू अप्लाई दीज कॉन्सेप्ट्स. बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स में हमें जरूरत पड़ेगी इनकी बच्चों. तो देखिए जैसे हम यहाँ पर कुछ बॉडीज लिख रहे हैं, सीरियल नंबर, बॉडी कौन सी बॉडी ले रहे हैं और इसका सेंटर ऑफ मास. फर्स्ट में ले रहे हैं आप, सबसे पहले आप ले रहे हैं रिंग एट इट्स सेंटर. हाउएवर देयर इज नो मास ऑन द सेंटर. सेंटर पे कोई मास नहीं होता है रिंग के, फिर भी सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, इसके रिंग पे लाई करेगा. देखिए जैसे ये बॉडी है, इस बॉडी में रिंग है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, इस सेंटर पे करेगा. द होल मास ऑफ द रिंग कैन बी एज्यूम्ड टू बी केप्ट एट दिस सेंटर ऑफ द रिंग. Then this is the center of mass of this ring. Similarly, we can have a disk. If it is a uniform disk, second disk, again at its center, third sphere, both hollow and solid at its center. इस पर भी center में लाई करता है. Okay, thin rod, as we have discussed in this case, thin rod, uniform mass distribution at its midpoint. At its midpoint. Fifth, a plain lamina. A plain lamina is a two-dimensional body of any arbitrary shape. जैसे पेपर है, जैसे plain lamina, इसको आप plain lamina कह सकते हैं. ठीक है, इसमें कहाँ लाई करेगा, at the intersection of the diagonals. एक डायगोनल ये ले लीजिए, एक डायगोनल ये ले लीजिए, ये जो सेंटर पे पॉइंट आएगा उस पर लाई करेगा. ठीक है, at intersection point of diagonals, right? Plane lamina. और plane lamina किसी भी फॉर्म में हो सकता है. It may be in the form of a square, it may be in the form of rectangle, or it may be in the form of parallelogram. किसी भी फॉर्म में हो सकता है, डायगोनल पे लाई करेगा. ठीक है, और अगर इसमें बच्चों एक वो आ जाए आपका जो आपका क्यूबॉइड फॉर्म में आ जाए, जैसे कोई कॉपी है, बुक है, इस फॉर्म में लेना चाहते हैं आप, अगर इसका सेंटर ऑफ मास निकालना चाहते हैं, आपको एनसीईआरटी की चलिए बुक लेते हैं हम, ये सेंटर ऑफ मास निकालना चाहते हैं, इसे कहाँ पे फाइंड करेंगे, इसमें ये भी डायगोनल आ जाएगा. एट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट पे क्या करेगा, लाई करेगा. ऐसे ही आप अगर मान लीजिए आप निकालना चाहते हैं सिलेंडर आइदर होलो और सॉलिड एट मिड पॉइंट ऑफ इट्स एक्सिस. ये सिलेंडर है और इस सिलेंडर पर ये सिलेंडर का एक्सिस होता है, इसके मिड पॉइंट पे लाई करेगा, सेंटर पे लाई करेगा. दिस इज वेदर इट इज होलो और इट इज सॉलिड. सिमिलरली इन केस ऑफ कोन, अगर कोन में लेंगे बच्चों तो देखिए कोन में थोड़ा डिफरेंस आता है. कोन में ये आएगा डिफरेंस, यहां पे लाई करेगा. एंड दिस डिस्टेंस इज 3h/4 and this distance is h/4, provided h is the height of the cone. It is at depth कितना, और at distance कह लीजिए, not depth, at distance 3h/4 from the vertex से 3h/4 पर लाई करेगा at this point, is center of mass. So these are the various cases in which the center of mass lies at a point on the body or
on the body or outside the body. Outside the body, in this case, ring. There is no mass, actual mass, where the center of mass is located. तो बच्चों ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जहाँ पर हम सेंटर ऑफ मास लेते हैं, कंसीडर करते हैं अलग अलग केसेस में, और ये बॉडीज के लिए आता है. तो न्यूमेरिकल्स में, प्रॉब्लम्स में कहीं भी आपको इनकी जरूरत पड़ सकती है सेंटर ऑफ मास निकालने की, तो आप ये इससे फाइंड कर सकते हो बच्चों. ये दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडीज. ऑल दीज बॉडीज आर रिजिड बॉडी. ये सभी बॉडीज कैसी हैं? रिजिड बॉडी. Now come to what is motion of center of mass. 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 If R is position vector of center of mass, position vector of center of mass, then what is velocity? Velocity of center of mass. V vector is equal to dr vector upon dt. What is acceleration of center of mass? A vector is equal to dv by dt. And what is external force? External force F is equal to, क्या होता है बच्चों? External force is equal to mass into acceleration m into a. This is acceleration of center of mass and this is force, external force you can find. So this is the way to find the velocity, acceleration, external force. If you want to find momentum, linear momentum, P vector is equal to m v vector. What is v? It is the velocity vector of center of mass, acceleration of center of mass, position vector of center of mass. This is force, this is momentum. So all these things we can define as we have defined in case of a point mass. So this is the motion of center of mass. Now let's have an example of center of mass. अब center of mass आपको समझ आ गया, आपने define कर दिया है, आपने इसका फॉर्मूले भी बता दिए हैं, आपने किसी रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास भी फाइंड कर लिया है. Now we want to take its example. देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल, मोशन ऑफ CM of अर्थ मून सिस्टम अराउंड सन. देखिए क्या पढ़ते हैं हम? ये पढ़ते हैं कि ये कोई सन है और सन की जो पोजीशन होती है वो एक फोकस पर इलिप्टिकल पाथ होता है प्लैनेट्स का, और किस पे लाई करता है? इलिप्टिकल पाथ के फोकस पे लाई करता है. ओके. एंड दिस इज सिस्टम ऑफ अर्थ एंड मून. अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड इट, मून इज ऑल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ. सो the center of mass of earth moon system is revolving around the sun rather than the earth is revolving around the sun. We'll assume that, हम ये assume करेंगे कि केवल अर्थ ही रिवॉल्व नहीं कर रही है, सेंटर ऑफ मास अर्थ रिवॉल्व नहीं कर रही है केवल किसके अराउंड? सन के अराउंड, बिकॉज मून इज ऑल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द सन. सो दिस इज सेंटर ऑफ दिस सिस्टम, अर्थ मून सिस्टम, and this is center of mass of this earth moon system. So we can consider a system of two particles. One particle is earth, another particle is sun, moon, and there is a center of mass of these two particle system, and this center of mass is revolving in an elliptical path around the sun. In this case I can say, if this is earth, suppose this is earth, so this is the rotation, this is the path of earth, and here I can say this is moon, and then moon is rotating around the earth. Moon is rotating around. This is moon and this is earth, and this is center of mass of earth moon system. This is center of mass earth moon system, and this example shows that the position of earth and moon will be on earth and moon will be opposite side of the center of mass. अगर अर्थ इधर आएगा तो मून उधर जाएगा, मून अगर इधर जाएगा तो अर्थ किधर चली जाएगी? अर्थ इधर की साइड में जाएगा, बिकॉज बोथ आर रिवॉल्विंग, और ये भी दोनों एक दूसरे के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं. तो मान लीजिए ये तो ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं दोनों, अर्थ मून जो होता है इसके अराउंड क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है कंटिन्यूअसली. तो सेंटर ऑफ मास ऑफ अर्थ मून सिस्टम विल लाई हियर एट दिस पॉइंट, एंड दिस पॉइंट इज नॉट द सेंटर पॉइंट और मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू मून, सेंटर ऑफ मून विद द सेंटर ऑफ अर्थ. It shift toward the heavier mass. इस फॉर्मूले से हम पढ़ के आएंगे, शिफ्ट हो जाएगा. It will shift toward the heavier mass. So now we can say the center of mass of Earth Moon system is revolving
around the sun in an elliptical path and sunlight at its one focus. इसे फोकस कहते हैं, फोकस पे लाई करता है सन. तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल हुआ बच्चों एक ऑफ सेंटर ऑफ मास. बात समझ आ गए? तो इसमें क्या एसेंशियल कंडीशन क्या है? एसेंशियल कंडीशन ये होगी, द मून एंड अर्थ विल लाई ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास. अगर दो पार्टिकल हैं, दो बॉडी हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों बॉडी एक ही तरफ हो जाए और सेंटर मास इधर आ जाए. So center of mass will lie on the line joining the center of these two bodies and anywhere on this line. So and it will obviously shift toward the heavier mass. इधर heavier mass होगा और इधर अर्थ heavy है, मून लाइट है, तो ये इधर कहीं बीच में लाई करेगा. तो अब हम ये नहीं कहेंगे अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन. एक्चुअल सेंस में हम कहेंगे द सेंटर ऑफ मास ऑफ अर्थ मून सिस्टम इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन. Okay, that in elliptical path. So बच्चों, this is one of the example of motion of center of mass of earth moon system around the sun. चलिए दूसरा एग्जांपल भी लेते हैं. सेकंड एग्जांपल किसी क्रैकर का लेते हैं, या कोई क्रैकर है या कोई भी ऑब्जेक्ट है जो बस्ट होता है. सपोज यहां से आपने एक पैराबोलिक पाथ बनाया, इमेजिन कीजिए पैराबोलिक पाथ, और यहां से किसी क्रैकर को आपने u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया, एंड सपोज एट दिस पॉइंट p द क्रैकर बस्ट हो जाता है क्रैकर. तो ऐसे केस में क्या होगा बच्चों, द डिफरेंट पीसेज और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द क्रैकर विल फ्लाई इन द डिफरेंट डायरेक्शंस फॉलोइंग द पैराबोलिक पाथ. आप जानते हैं कोई एक पार्ट इधर से जाएगा तो उसका पैराबोलिक पाथ ये बनेगा, कोई इधर से जाएगा उसका पैराबोलिक पाथ ऐसे बनेगा, कोई इधर से जाएगा वो पैराबोलिक पाथ बनेगा, कोई इधर से जाएगा वो पैराबोलिक पाथ बनेगा, कोई इधर से जाएगा पैराबोलिक पाथ बनेगा. देन वी कैन एज्यूम द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस क्रैकर, जितने भी पीसेज हैं उन सब का सेंटर ऑफ मास किसके अलोंग मूव कर रहा है? अलोंग दिस पैराबोलिक पाथ. एज द क्रैकर इज फॉलोइंग व्हेन इट इज नॉट बस्ट. अगर क्रैकर बस्ट नहीं होता है तो जो पाथ क्रैकर का बनता है वही पाथ बनेगा किसका? सेंटर ऑफ मास का. सो दीज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द क्रैकर विल फ्लाई इन द डिफरेंट डायरेक्शन. कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, पैराबोलिक पाथ बनेगा, इधर पैराबोलिक पाथ बनेगा, इधर बनाएगा, इधर पैराबोलिक पाथ बनेगा. सो मेनी पाथ्स विल बी देयर, सब पैराबोलिक पाथ बनेंगे. लेकिन जब हमका सेंटर ऑफ मास हम कंसीडर करेंगे, सो दिस इज द पाथ ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस क्रैकर. ओके, ये सेंटर ऑफ मास बनेगा. सो बच्चों, दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम. कैसे सेंटर ऑफ मास को आप डिफाइन करते हैं बच्चों. तो देखिए, अब हमने सेंटर ऑफ मास को समझ लिया क्या होता है. सेंटर ऑफ मास पहले हमने डिफाइन किया क्या होता है, फिर उसके बाद सेंटर ऑफ मास को हमने फॉर्मूला डेराइव किया किसके लिए? फॉर टू पार्टिकल सिस्टम. देन वी हैव अप्लाइड इट इन जनरल केस फॉर n पार्टिकल सिस्टम. देन वी हैव फाउंड इट्स एक्सप्रेशन for its components x, y and z, and then we have tried to apply this formula in case of rigid bodies, and then we have found certain points of center of mass in case of the rigid bodies, and finally we have taken the examples of center of mass. अब जाकर के सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट हमने कंप्लीट किया है. इतने सारे पॉइंट सेंटर ऑफ मास में बच्चों हमें समझ में